Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। आज हम लोग देख रहे हैं एंटो 1 का अध्याय 13 श्लोक संख्या 11। हम लोग ने जब देख रहा था कि युधिष्ठिर और विदुर जी का संवाद चल रहा है, तो आज युधिष्ठिर और विदुर जी से एक सवाल पूछते हैं। अपि न सुरदस्तात बांधवः कृष्ण देवताः दृष्टा श्रुता वयदवाः स्वपुर्यां सुखम आसते। So translation by Srila Prabhupada. Jai Sri Prabhupada. My uncle, you must have visited Dwarka. In that holy place are our friends and well-wishers, the descendants of Yadu, who are always wrapped in the service of Lord Shri Krishna. You might have seen them or heard about them. Are they all living happily in their abodes? तो यहाँ पे विदुर जी से युधिष्ठिर मतलब पूछते कि चाचा जी आपने मतलब ने द्वारका तो विजिट किया रहेगा, जो इतना बड़ा धाम है, और वहां पे अपने जो दोस्त और जो सुहृद है, वेल विशर्स, वो जो डिसेंडेंट्स ऑफ यदु है, वो जो श्री कृष्ण के सर्विस में सदैव तत्पर रहते हैं, तो आपने उनको भी देखा रहेगा, उनके बारे में सुना भी रहेगा, तो क्या वो सुखी है वहां पे? फिर हम लोग अगला श्लोक देखते हैं, श्लोक संख्या 12। इत्युक्त धर्मराजेन सर्व तत्समवर्णयत् यथानुभूतं कर्मशो विना यदुकुलक्षयम्। Thus, being questioned by Maharaj Yudhishthir, Mahatma Vidur gradually described everything he had personally experienced except news of the annihilation of the Yadu dynasty. तो जैसे अपने प्रश्न पूछने के बाद, युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न पूछने के बाद महात्मा विदुर उनको सब कुछ बताते हैं, और जहां उन्होंने जो जो चीज अनुभव किया है पर्सनली, वो चीज उनको बताते हैं। सिर्फ वो जो यदु जो कुल है, उनका जो सर्वनाश हुआ था, उनके बारे में वो नहीं बताते। उसके बारे में रीजनिंग जो है वो अगले श्लोक में दिया गया है। हम लोग परपट पढ़ते हैं। So purport by Jai Srila Prabhupada. The particular word Krishna Devata, that is, those who are always wrapped in the service of Lord Krishna, is significant. The Yadavas and the Pandavas, who are always wrapped in the thought of Lord Krishna and his different transcendental activities, were all pure devotees of the Lord, like Vidura. Vidura left home in order to devote himself completely in the service of the Lord. But the Pandavas and the Yadavas were always wrapped in the thought of Lord Krishna. Thus, there is no difference in their pure devotional qualities, either remaining at home or leaving home. The real qualification of a pure devotee is to become wrapped in the thought of Krishna favorably. That is, knowing well that Lord Krishna is the absolute personality of Godhead. Kamsa, Jarasandha, Shishupal, and other demons like them were also always wrapped in the thought of Lord Krishna, but they were absorbed in a different way, namely unfavorably, or thinking him to be a powerful man only. Therefore,
Kamsa and Shishupal are not in the same level as pure devotees like Vidura, the Pandavas, and the Yadavas. Maharaj Yudhishthir was always wrapped in the thought of Lord Krishna and his associate of Dwarka. Otherwise, he could have asked all about them from Vidura. Maharaj Yudhishthira was therefore on the same level of devotion as Vidura, although engaged in the state affairs of the kingdom of the world. तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो विदुर जी को जो सवाल पूछा गया था युधिष्ठिर महाराज ने, तो उनकी जो पहली जो क्वेरी है, ये जो पहली इंक्वायरी थी कि वो कृष्ण की फैमिली कैसे है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो एक प्योर डिवोटी रहता है युधिष्ठिर जैसा, उनका जो सबसे पहला सवाल या सबसे पहली उनके मन में जो ख्याल आता है वो कृष्णा। तो वो जो पूछते हैं वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में होने के वजह से वो जो पहले उनका सवाल कृष्णा के बारे में रहेगा, और मतलब दे विल ऑलवेज थिंक ऑफ कृष्णा के बारे में ही सोचेंगे, और कृष्णा के बारे में ही पहला कृष्णा के बारे में ही सोचेंगे, सवाल भी कृष्णा के बारे में पूछेंगे। तो यहाँ पे ये जो सुहृद करके जो वर्ड है, जो सुहृद करके जो वर्ड यूज किया है, इसके बारे में श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन दिया है, एक बहुत अच्छा उन्होंने इसके ऊपर इसके बारे में समझा है। तो मैं वो थोड़ा उसके बारे में बता देता हूँ जो श्रील प्रभुपाद जी ने बताया। तो यहाँ पे उन लोग बोले कि सुहृद का जो मीनिंग है वेल विशर, जो अपने हित चिंतक, जो अपने बारे में अच्छा सोचते हैं, जिनका हृदय जो रहता है वो कंटेमिनेट नहीं रहता है, जिनका हृदय स्वच्छ रहता है। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं कि सुहृद के ऊपर मतलब यहाँ पे उन्होंने कहते हैं कि श्री कृष्णा अपना सुहृद है। यहाँ पे प्रभुपाद जी शुरुआत इसी तरह करते हैं कि श्री कृष्ण अपना सुहृद है, लेकिन इस मटेरियल वर्ल्ड में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारे सुहृद है, मतलब हमारे जो भी शुभ चिंतक है, हमारे बारे में सोचते रहते हैं, हम लोग मतलब दोस्त है, भाई है, बहन है, बहुत सारे होते हैं हमारे, तो हम लोग को बोलते रहते हैं कि हम तुम्हारे शुभ चिंतक है, हम तुम्हारे हित चिंतक है। लेकिन हर एक वो जो मटेरियल होने की वजह से हर एक में कोई तो भौतिक इंटरेस्ट होता है, इसलिए इन्हें एकदम सही मायने में सुहृद नहीं कहा जा सकता है। लेकिन आध्यात्मिक सुहृद का जो मतलब है, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो सभी जीवों को आध्यात्मिक भावनामृत या श्री कृष्ण भावनामृत की तरफ खींचने का प्रयास करता है, उसे सुहृद कहते हैं। तो हमारा जो भौतिक जो एग्जिस्टेंस कुछ अच्छा नहीं है, हम लोग जो भी भौतिक में बद्ध जीव करके हम लोग जी रहे हैं, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सुखी होने की इच्छा करते हैं। और हम लोग सुखी होने की इच्छा मतलब खोज करते हैं कि हम लोग ये करेंगे तो सुखी होंगे, ऐसे करेंगे तो सुखी होंगे, एडजस्टमेंट करने की इच्छा करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं कि बाबा चलो ऐसे करेंगे तो तकलीफ कम होगी, ऐसे करेंगे तो तकलीफ कम होगी। तो हम सब कुछ ठीक करेंगे, उसके पीछे हम लोग लगे रहते हैं, मतलब हम लोग सब कुछ ठीक करेंगे, इसकी रट लगा के रहते हैं। इसे कहते हैं पुनः चर्विता चर्वणाम। ये श्रीमद् भागवतम में ये बताया गया 7.5.30 में कि च्यूइंग दी च्यूड अगेन एंड अगेन। तो हम लोग, कुछ आवाज आ रहा है क्या प्रभु जी? तो फिर यहाँ पे जो च्यूइंग द च्यूड अगेन, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अभी प्रभुपाद जी ने एग्जांपल ऐसा दिया था कि शादी करके हम लोग घर बसाना सोचते हैं कि और घर बसाएंगे तो हम लोग के हिसाब से वो हम लोग ने सब कुछ ठीक कर दिया, हमें सब कुछ मिल गया, दैट इज द एंड ऑफ एवरीथिंग, नाउ वी डोंट वांट एनीथिंग, कि चलो हम लोग की शादी हो गई, हम लोग अच्छा खासा अच्छी पत्नी मिल गई, अच्छे बच्चे हो गए, बैंक बैलेंस हमारा अच्छा बन गया, तो हम लोग खुश हो जाएंगे, हम लोग
अभी हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये हम लोग जो बोले इंद्रिय सुख के पीछे हम लोग जो लगते हैं, तो एक बार इंद्रिय सुख मिल गया तो हमारे इसी में जो हम लोग जीवन को सुखी करना मतलब सब कुछ मिल गया। तो ये हम लोग का जो सोच है वो यहाँ तक रहती है। तो अभी प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैराग्य, ये जो श्री कृष्ण का जो वन ऑफ द ऑप्युलेंस है, रिनंसिएशन, तो वैराग्यम हम लोग भी श्री कृष्ण की एक अंश है, तो वैराग्यम भी हमारी एक प्रॉपर्टी है। तो वैराग्यम जो अपनी एक जो प्रॉपर्टी है वो अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे, अच्छा बैंक बैलेंस होने के बाद तो पूरा भूल जाता है। मतलब हमारे पास वैराग्य का जो प्रॉपर्टी है, वो वैराग्यम की प्रॉपर्टी हम लोग सुखी, जो एक मटेरियल लेवल पे हम लोग जो सुखी का जो सोच है, वो सुख का सोच एक बार हम जो मटेरियल लेवल पे हम लोग जो बोलते हैं कि सब अच्छी पत्नी, अच्छा पैसे, अच्छे बच्चे, तो ये हम लोग सुखी का जो सोचते हैं, जो सोच है, वो सुख हम लोग को मिल गया तो हम लोग वैराग्य से दूर भाग जाएंगे, क्योंकि हम लोग फिर वैराग्य को हम लोग सोचेंगे नहीं। तो ये जो है वो माया अपने पे काम करती है और ये वैराग्यम के ये चीज को वो ढक देती है। तो कृष्णा इसीलिए अपने जो भक्तों का टेस्ट करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अपने से सब कुछ छीन लेते हैं, सब कुछ छीन लेते हैं। तो ये जो छीनने का जो है, तो वो जो उन्होंने हर एक भक्तों से, तो उन्होंने पांडवों से भी छीन लिया था। पांडवों पे उन्होंने काफी टेस्टिंग किया, उनका सब कुछ छीन लिया। मतलब उनके पास, उनके हम लोग अगर, हम लोग को तो पता है कि उनके पास उन पे बचपन से ही अत्याचार हो रहे थे और श्री कृष्ण उनके साथ थे, लेकिन श्री कृष्ण भी उनको टेस्टिंग कर रहे थे। 13 साल अज्ञातवास, सॉरी 13 साल वनवास, 1 साल अज्ञातवास, बाद में द्रौपदी का चीरहरण, उनपे जो बाकी के जुल्म जो ढाए गए थे दुर्योधन के तरफ से, वो सब कुछ उनपे हो रहा था और वो जो एक तरीके से वो टेस्टिंग था। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने कभी भी श्री कृष्ण को नहीं छोड़ा। और ये जब हम लोग करते हैं तो उसे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसे बोलते हैं भक्त। तो श्री पॉल आगे कहते हैं कि इस मटेरियल एंजॉयमेंट को रबिश कहना, मतलब हम लोग जो सुख जो बोलते हैं कि अच्छा, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, अच्छा खासा पैसा, एक अच्छा घर, अच्छा फैमिली, ये जो चीज जो मटेरियल एंजॉयमेंट हम लोग कहते हैं उसको रबिश कहना चाहिए। और आदमी जब उसको रबिश कहता है तो वो एक बहुत बड़ा क्वालिफिकेशन है। इस मटेरियल एंजॉयमेंट को रबिश कहना एक बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन है। तो कुंती महारानी श्री कृष्ण को अकिंचन गोचरा कहती है। तो अकिंचन गोचरा मतलब जो जो अकिंचन है, जिसके पास कुछ नहीं है, वो श्री कृष्ण को अच्छी तरह से जानता है। तो वो कहती है कि आपको सिर्फ वो ही जानता है जिसके पास कुछ नहीं होता है, जिसके भौतिक सुख की इच्छा है, वो कृष्ण भावनामृत नहीं हो सकता, क्योंकि वो मटेरियल एंजॉयमेंट के पीछे लगा रहता है। उसको उसको लगता है कि हम लोग मटेरियल लेवल पे हम लोग अगर सुखी है तो फिर हम लोग को उसके ऊपर कुछ नहीं चाहिए। तो फिर वो तभी कृष्ण को कुछ नहीं सोचता, कृष्ण के बारे में कुछ नहीं सोचता है। तो वो कृष्ण, और वो फिर वो मतलब, और फिर बाद में प्रभुपद जी और कहते हैं कि उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु जी का उदाहरण दिया है। तो वो चैतन्य महाप्रभु जी जैसे कहते हैं कि निष्किंचनास्य भगवत भजन न मुखस्य। तो ये जो उसका मतलब है, भगवत भजन, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज मेंट फॉर दोस हु आर निष्कांचनस्य। तो जो निष्कांचन है, जिसके पास कुछ पैसा नहीं है, भौतिक सुख नहीं है, वो जो मतलब भौतिक जो सुख नहीं है, वो है जो कृष्ण भावनामृत हो सकता है, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में खुद को आगे अपनी, बोलते हैं ना, जान न्योछावर कर सकता है। तो जिसका पास कुछ नहीं होता है, इसके अलावा मतलब श्री प्रभु जी कहते हैं कि ऐसा मतलब ये नहीं कि हम पूरी तरह से कंगाल हो या हमारे पास खाने पीने की भी नौबत नहीं, वैसे नहीं। तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि ये जो सब हमारे पास है, ये जो भी भौतिक सुख है, जो भौतिक हमारे पास जो भी है, वो सब श्री कृष्ण का है। हम लोग सिर्फ उसके दास है। और हम लोग को ये जो भी मिला है, जो कृष्ण की कृपा से हम लोग को मिला है, वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में, कृष्ण की सेवा में, कृष्ण की प्रीति में, कृष्ण के प्रेम में हम लोग को यूज करना है। तो अगर हम लोग वो ऐसा करते हैं तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस है। तो कोई लोग है वो ऐसे भी कहते हैं कि कृष्णा को हम लोग अपने सेंटर में रखेंगे, लेकिन हम लोग मटेरियल लेवल पे भी
प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, मटेरियल जो सुख है वो हम लोग भी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। मतलब हम लोग, प्रभुपाद जी कहते हैं कि चलो मैं कृष्ण का भजन करूंगा, मैं कृष्ण का नाम लूंगा, लेकिन मैं मटेरियल लेवल पे जितना है वो भी प्राप्त करने का सोचूंगा। तो प्रभुपाद जी उसको चीटर कहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये भी एक चीटिंग है। तो ये अकिंचन नहीं है। हमें पूरा से पूरा कृष्णा कॉन्शियस होना चाहिए। सब कुछ कृष्ण का है और मेरा कुछ नहीं। तब कृष्णा हमारे सुहृद बन सकते हैं और वो हमें अपनी हिरासत में लेते हैं। तो प्रभुपाद जी इतना पूरा जो तात्पर्य बताते कि ये कहते हैं कि अगर हम लोग वो लेवल पे पहुंचेंगे तब कृष्णा हमारा सुहृद बन जाता है। तो प्रभुपाद जी इतना इतना बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था और सुहृद कैसे होना चाहिए, और श्री कृष्ण को हम लोग सुहृद बनाने के लिए और श्री कृष्ण हमें उनका सुहृद बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताया है। और वो है, वही हमारा अल्टीमेट बेनिफिट है। तेषाम सतत युक्तानाम भजतम प्रीतिपूर्वकम। तो ये जो भजतम प्रीतिपूर्वकम, ये चीज को हम लोग को अच्छी तरह से हाईलाइट करना है। तो शिष्टाष्टकम में चौथे इसमें भी कहा गया है कि ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम वा जगदीशा कामये। तो हम लोग को सिर्फ आई ओनली वॉन्ट यू, नथिंग एल्स अदर देन यू, ये अपने को रट लगा के रखनी चाहिए। और हम लोग को सिर्फ यही सोचते रहना चाहिए कि हम लोग को श्री कृष्ण के बदले में और श्री कृष्ण के बगैर हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, हम लोग को सिर्फ श्री कृष्ण चाहिए। तो इसके ऊपर और एक थोड़ी सी बात ऐसी होती है कि आगे उन्होंने कहा था कृष्ण देवता। तो कृष्ण देवता के बारे में प्रभुपाद जी ने और अच्छा कहा है कि देवता जो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग जो एक डेमी गॉड्स के पीछे हम लोग को लगे रहते हैं और डेमी गॉड से हम लोग हर बार मांगते रहते हैं, हम लोग को सुख चाहिए, हम लोग को पैसा चाहिए, हम लोग को बंगला चाहिए। तो ये जो हम लोग जो मांगते हैं सुख और ये बंगला, मतलब हम लोग को जो एक सुख की जो व्याख्या है वो इतनी गलत है कि पैसा में बंगला मिलेगा तो हम खुशी हो जाएंगे, सुख हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, BMW मिलेगी तो हम लोग, मतलब ऐसे अलग अलग तरीके से हम लोग जो भौतिक सुख की प्राप्ति करने का सोचते हैं। लेकिन जैसे हम लोग भगवान से सुख मांगते हैं वैसे कभी दुख नहीं मांगते, लेकिन दुख मिलता है, सुख भी मिलता है। तो वो हमारा जैसे मैंने पढ़ा था, जैसे अपने अपने अमोघ लीला प्रभु जी ने बताया था कि जन्म मृत्यु दुख सुख यश और अपयश, ये जो 3-6 चीज है वो हमारे नसीब में लिखी है, हमारे पूर्व जन्म के कर्म के हिसाब से हम लोग को मिलने वाली है। तो हम लोग अगर कितना भी डेमी गॉड्स के सामने वर्शिप करके हम लोग ने कितना भी उनसे मांगा कि चलो मुझे एक बंगला दे दो तो मैं सुखी हो जाऊंगा, बंगला शायद हम लोग हमारी भक्ति से भगवान हमें बंगला दे भी दे, लेकिन क्या बंगला मिलने के बाद हम लोग सच्ची में सुखी रहेंगे क्या? तो डेफिनेटली नहीं। क्योंकि अगर हम लोग फिर अगर हमारे नसीब में वो दुख है तो हम लोग को वो बंगला मिलने के बाद दुख मिलेगा ही। फिर बंगले का मेंटेनेंस, बंगले में कोई अगर प्रॉब्लम हो गया, वैसे बंगले में चोरी हो गई, बंगले में हम लोग ने किसी को गार्ड को रखा, उसका इंटरनल कुछ अफेयर हो गया, वहां पे अगर कुछ लोग आते उनका उनमें झगड़ा हो गया, तो हम लोग फिर क्या करेंगे, वो सब उसमें खुद को वो सुलझाने के पीछे लगेंगे, कृष्ण भक्ति भूल जाएंगे। वैसे अगर हम लोग गाड़ी ले ले तो और सोचेंगे कि चलो हम लोग को BMW मिल गई तो हम लोग सुखी हो जाएंगे, तो सच्ची में BMW मिल के हम लोग सुखी होंगे क्या? नहीं। हमारे भाग्य में अगर दुख है तो हम लोग को वो BMW लेके हम लोग को दुख मिलेगा, हम लोग किसी का एक्सीडेंट कर देंगे, हमारे पे पुलिस केस हो जाएगा। तो ये भी है। तो फिर हम लोग, मतलब ये जो भौतिक सुख के पीछे हम लोग जो लगे रहते हैं डेमी गॉड की वर्शिप करके, तो प्रभु जी कहते हैं कि वो नहीं करना है। हम लोग को कृष्ण देवता, ये चीज को हम लोग को अच्छी तरह से ध्यान करना है और कृष्ण के प्रति हम लोग को प्रेम करना है। कृष्ण हम पे एवरी सेकेंड ऑफ आवर लाइफ कृष्ण इज लविंग अस, ये हम लोग को जानकारी होनी चाहिए। तो एक जस्ट मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जो बचपन से मैंने कहानी सुनी थी प्यार की, और भौतिक लेवल पे हम लोग देखते हैं तो प्यार का आइडियल एग्जांपल है माँ। तो मैंने बचपन में ये कहानी सुनी थी, वो मुझे जस्ट कहानी बताता हूँ। तो वो कहानी ऐसी थी कि एक माँ है, अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, मतलब हर माँ करती है अपने बच्चों से प्यार। तो वैसे ये एक माँ रहती है, अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, बहुत 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 प्यार करती रहती है। ये बच्चा भी शुरुआत में अच्छा बहुत प्यार करते रहता है, लेकिन जैसे उसकी शादी हो जाती है और फिर उसका प्यार बढ़ जाता है और फिर वो पूरी तरह से
बीवी के प्यार में हो जाता है और माँ से वो फिर उतना प्यार नहीं करता है। तो ये बीवी जो है वो एक बार उसको बोलती है कि अगर आप मुझे सच्ची प्यार करते हो तो आप अपने माँ का कलेजा लेके आ जाओ। तो ये बच्चा माँ को जाके बोलता है कि ऐसा ऐसा है, तो माँ बोलती है ठीक है, अगर तू उससे तू खुश होने वाला रहेगा तो मेरा कलेजा लेके जा। तो फिर वो माँ का कलेजा ले जाता है, माँ को मार डालता है, माँ का कलेजा लेके जाता है। और जब वो बीवी के पास जाते रहता है तो चलते चलते उसको पाँव को एक ठोकर लगती है और वो गिर जाता है। तो जैसे गिर जाता है तो उसके हाथ से वो कलेजा भी हाथ से निकल जाता है, वो गिर जाता है। तो कलेजे के मुंह से वर्ड निकलता है, बेटा तुझे लगी तो नहीं। तो ये हम लोग जब सुनते हैं ये कि माँ को उसने मार डालने के बाद भी माँ का कलेजे से पहले वर्ड निकलता है, बेटा तुझे लगी तो नहीं। तो माँ इतना प्यार हम लोग करती है। अभी ये स्टोरी एग्जेजरेटेड है डेफिनेटली, लेकिन ये माँ के बारे में बताया गया है। तो ये माँ का प्यार जो अल्टीमेट लेवल पे प्यार बोलता जाता है, भौतिक लेवल पे अल्टीमेट लेवल का प्यार अगर माँ का प्यार है, तो माँ के प्यार के वजह से ये एग्जेजरेशन चल जाता है, एक्सेप्टेंस हो जाता है कि बाबा हाँ माँ का प्यार है तो कलेजे से भी माँ बेटे के लिए माँ से माँ के हृदय से शब्द निकलेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि माँ एक बच्चे से इतना प्यार करती है, और और वो उस जन्म में उसकी माँ है, उसके लिए वो प्यार करती है। हम लोग लाखों जन्म ले चुके हैं, हम लोग ने लाखों जन्म से हम लोग कीड़े बन गए, चूहा बन गए, बिल्ली, कुत्ता, जो भी हम लोग बनते आके अभी मनुष्य का शरीर हम लोग को मिला है। तो भगवान हमसे तो इतना प्यार एवरी जन्म में, हर एक जन्म में उसने हम लोग को, हर एक सेकंड में हम लोग से उसने इतना प्यार किया है। और वो हम लोग जरा भी भूलते नहीं। हम लोग को अगर जरा भी कुछ खरोच तक आ जाती है, हम लोग पहले कृष्ण से ये करते, झगड़ा करते कि भगवान आप मेरा ख्याल नहीं रखते हो, आपकी मेरी चिंता नहीं है। अगर हम लोग बस हम लोग को अपने कर्म से हम लोग को अगर कोई दुख मिल गया तो हम लोग वापस भगवान से झगड़ा करते, बोलते कि आपको मेरा ख्याल नहीं है, आपको मेरी चिंता नहीं है, आप मेरी परीक्षा लेते हो, आप मुझे परेशान करते हो। तो ये जो हम लोग चीज है, हम लोग कितने अज्ञान हो गए, हम लोग को कितना चीजों का अज्ञान हो गया है कि हम लोग भगवान जो अपने पे इतना प्यार करता है वो हम लोग उससे इतना दूर जा रहे हैं। हम लोग को ये पता नहीं कि हम लोग को एवरी सेकेंड अपना जो प्रत्येक श्वास है, प्रत्येक जो अपना कदम है, हर कदम में कृष्ण अपने साथ है। हर कदम में अब हम लोग कदम रख के गिर सकते हैं, वो कृष्ण हम लोग को गिरने नहीं देता है। तो हम लोग को वो चीज याद रहना चाहिए। और वो हम लोग को बोलते हैं ना, कृत कृत्य बोलते हैं, जो हम लोग की कृष्ण ने हमारे पे जो प्यार किया है, हम लोग उस चीज की हम लोग को जानकारी होनी चाहिए। हम लोग को उसके प्रति कृष्ण का आभारी होना चाहिए। तो ये चीज का मतलब जो इसे प्रभुपाद जी ने इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दिया था, उसका एग्जाम्पल मैंने लिया था। और फिर ये जो चीजों से हम लोग इतना सिर्फ ये प्लान करेंगे और आगे चल के हम लोग इतना सोचेंगे कि हमारे पास जो भी है वो कृष्ण के प्यार है, हम लोग को उससे मिला है। कृष्ण ने हम पे इतना जो उपकार किया है, उसकी वजह से हम लोग को जो भी अच्छा है वो कृष्ण के वजह से है। ये सोच के हम लोग को अपनी जिंदगी बढ़ाती रहनी चाहिए, और खुद को कृष्ण के दास समझ के कृष्ण की भक्ति में खुद को लगा रखना चाहिए। अपने साथ अपने जो भी बच्चे हैं, घर वाले हैं, सबको कृष्णा का प्रति प्यार, कितना कृष्णा अपने पे प्यार करता है, वो चीज को हम लोग को सबको बताना चाहिए। तो इसके साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। मेरे से अगर कुछ भी गलती हो गई रही तो प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। समीर प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी वंडरफुल क्लास, बहुत बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। और आप जब भी बोल रहे थे ना, हर एक सांस में हम लोग को भगवान का नाम और भगवान को याद रखने का, वो पॉइंट बहुत अच्छा लगा। ऐसे तो सब पॉइंट्स अच्छे थे। और जब भी प्रभु जी आप शोहरत के बारे में बता रहे थे, मैं जस्ट सोच रहा था हमारी शोहरत माधव प्रभु के बारे में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वंडरफुल क्लास प्रभु जी। और हम लोग देखते हैं कि नामापराध में भी हम लोग देखते हैं कि हरे कृष्ण महा लास्ट का जो अपराध है, हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र लेते जब भी है, लेकिन फिर भी अपना अटैचमेंट, दिस इज आल्सो वन ऑफ द अपराध। सो तो जो विरक्ति है, जैसे आपने राइटली सेड कि हर एक चीज हम लोग भगवान के सेवा में लगाना चाहिए। तो थैंक यू प्रभु जी फॉर वंडरफुल क्लास। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। प्रभु जी सूरत का जब मैं भी सुन रहा था तो मुझे भी अपने सूरत माधव प्रभु जी की याद आ गई थी। वो भी वैसे ही एकदम शांत और एकदम वेल विशर जैसे अपने। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु, सही बोला आपने कि अब ये वर्ड आता है तो हम लोग हमेशा सूरज महादेव को याद करते हैं, और वो बराबर नाम पे एकदम फिट, उनके गुरु महाराज ने उसको बहुत अच्छा नाम दिया है, विच ही डिजर्व्स, क्योंकि वो रियली इज ना सूरदम टू ऑल हिज डिवोटी फ्रेंड्स, वेल विशर्स, फैमिली, सभी का मतलब वो सही में सूरत है। वो मतलब जस्ट ऐसा दिखावा या आर्टिफिशियल ऊपर ऊपर नहीं है, वो जो भी करता है ही डज इट फ्रॉम हिज हार्ट, तो हिज नेम इज अप्रोप्रिएट। और आपका क्लास प्रो मैं स्टार्ट में पूरा नहीं सुन पाया, मैं स्टार्ट का 15 मिनट्स मिस हो गया, लेकिन बाकी जो भी सुना इट वाज नाइस। वो कृष्ण देवता की कैसे भगवान का डिसीजंस पे हम लोगों को भरोसा, एंड नॉट डू उग्र कर्मा। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा समीर प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गोपीनाथ प्रभु, सत्यराज प्रभु, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु। एक्चुअली आज का आपका क्लास एक डिफरेंट लेवल का था प्रभु। मतलब ऐसा लग रहा था कि आपने वो अनुभव किया है, जैसे आप बात कर रहे थे, मतलब हाउ वी हैव टू लव लॉर्ड। और कल ही मैं पत्री प्रभु का एक क्लास सुन रहा था, तो उसमें भी वो बता रहे थे कि भगवान के अलावा हमको और भक्ति के अलावा आनंद नहीं है। वो अच्छा बोला उन्होंने, मैंने वो शेयर किया था। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी केवल हरि का दास। तो आपका ये मतलब क्लास पूरा उसी में मतलब बहुत ही अच्छी तरह से आपने समझाया प्रभु। थैंक यू सो मच। दंडवत प्रणाम प्रभु। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। ऑल